Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Science Class 8. This is your book Science Horizon, Inspiring Tomorrow's Innovators. So children, today we are going to start with a new chapter and this is chapter number 8 of the book and the name of the chapter is Force and Pressure. So children, in this chapter we are going to learn about force, unit of force, kind of forces and pressure. Force. It is defined as a push or pull. It can be defined as the external agent that can change or affect the following. So force क्या है? इसे हम push या फिर pull भी कह सकते हैं. किसी चीज को push करना means धक्का देना, किसी चीज को pull करना means अपनी तरफ खींचना. और इसे हम एक एक्सटर्नल एजेंट भी कह सकते हैं जो इफेक्ट करता है वेरियस थिंग्स को. द मोशन ऑफ द बॉडी, द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड द शेप ऑफ द बॉडी. सो ये तीनों चीजें हैं जिन्हें ये इफेक्ट करता है. वी ऑफन यूज द वर्ड फोर्स इन एवरीडे लाइफ फॉर अ पुश, पुल, स्ट्रेच और स्क्वीज. तो हम फोर्स को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो पुश की बात हो, पुल की बात हो, स्ट्रेच की बात हो या फिर किसी चीज को स्क्वीज करने की बात हो. द फॉलोइंग एग्जांपल्स विल मेक इट क्लियर. नाउ फोर्स एज अ पुश. पुश मींस धक्का देना. टू ओपन द डोर फ्रॉम इनसाइड वी पुश. सो अंदर है हम और डोर को ओपन करना है अंदर से, तो हम क्या करते हैं? पुश. टू मूव अ पाइल ऑफ रबिश मींस कूड़े के ढेर को उठाने के लिए. We push it with a broom. हम broom से उसे push करते हैं. To move a pile of rubble, a bulldozer pushes it. Bulldozer क्या करता है? इसे push करता है. To move a pram, we push it. तो pram को move करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे push करते हैं. If a car does not start, we have to push it. अगर कार जो है start नहीं होती तो हम क्या करते हैं? हम उसे push करते हैं. In all the above examples, force is applied as push. So इन सारे examples की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो force apply हो रहा है उसमें push किया जा रहा है different things को. Force as a pull. To move a lawn mower, a gardener pulls it. Lawn mower को चलाने के लिए gardener क्या करता है? उसे pull करता है. To move a cart, horse or bull pulls it. Cart को move करने के लिए horse और bull अपनी तरफ उसे pull करती है, खींचती है. To move a rickshaw, the rickshaw puller has to pull it. रिक्शा को move करने के लिए रिक्शा पुलर को रिक्शा को अपनी तरफ खींचना पड़ता है. To move a luggage trolley, a coolie has to pull it. Luggage trolley को move करने के लिए कूली को उसे पुल करना पड़ता है. And to open a door from outside we need to pull it. So door को अगर हमें बाहर से खोलना है तो हम क्या करते हैं? उसे पुल करते हैं. In all the above examples, force is applied as pull. और इन सारे examples में जो force apply हो रहा है उसमें pull किया जा रहा है. Force as a stretch. अब stretch means किसी चीज को दोनों तरफ से खींचना. When a spring or a rubber band और thin wire is stretched. जब spring, rubber band या फिर किसी thin wire को हम खींचते हैं, its length increases. उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है. Hence, the force acts as. यहाँ पे जो force है वो क्या बोल रहा है? Hence, the force acts as a stretch. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? Stretch कर रहे हैं किसी भी चीज को. Force as a squeeze, किसी चीज को निचोड़ देना. This is called squeeze. A gum tube or toothpaste tube is squeezed to get gum or a toothpaste from it. So gum या फिर toothpaste को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? toothpaste के tube को squeeze कर देते हैं, press करते हैं बहुत तेज से. A water-filled balloon is squeezed to obtain a jet of water. So water-filled balloon है, उसमें से अगर हमें पानी के का एक फव्वारा निकालना है तो हम क्या करते हैं? हम उसे squeeze करते हैं. A piece of rubber when squeezed or pressed gets deformed. और अगर एक
रबर का पीस है उसे हम स्क्वीज करेंगे तो जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। अ लम्प ऑफ वैक्स और प्लास्टिसिन। सो अगर वैक्स या फिर प्लास्टिसिन को हमने जो है जब प्रेस किया तो क्या होगा, इट गेट्स डीफॉर्म, इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। Hence the force acts as squeeze. In the above examples, the word force is associated with some kind of movement or change in the shape. इन सारे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स है वो किसी से एसोसिएट कर रहा है, किसी तरीके के मूवमेंट या फिर चेंज से एसोसिएट कर रहा है। दिस मूवमेंट और डिफॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ द पुश और पुल। ये जो मूवमेंट है या जो डिफॉर्मेशन है ये किस चीज का रिजल्ट है, पुश या फिर पुल का, स्ट्रेच या फिर स्क्वीज का। द फोर्स दस फोर्स इज अ कॉज which results to tends to result in movement or deformation of the body. So इसलिए जो ये फोर्स है ये कॉज है जो क्या करता है, जो रिजल्ट करता है या वह हमें बताता है कि जो मूवमेंट है उसने कैसे बॉडी को डिफॉर्म कर दिया है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। When a force is applied on a body, it can have the following effects. So जब हम फोर्स को किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। A force can move a body originally at rest. तो फोर्स क्या करता है, बॉडी को रेस्ट पे ला सकता है, एक रेस्ट वाली बॉडी को मूव कर सकता है। सो द बॉडी एट रेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेशनरी बॉडी। ऐसी चीज, ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक रेस्ट पोजीशन पे है उसे हम स्टेशनरी बॉडी कहते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट इट बिगिंस टू मूव। जब जो है फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी भी बॉडी पे जो रेस्ट की पोजीशन में है तो इट बिगिंस टू मूव, वो चीज जो है मूव करने लग जाती है। एग्जाम्पल, अ टॉय कार ओरिजिनली एट रेस्ट व्हेन पुश्ड बिगिंस टू मूव। सो एक टॉय कार है वो अपनी पोजीशन पे है और जब हम उसे क्या करते हैं, पुश करते हैं तो वो मूव करने लग जाती है। अ लॉन मूवर मूव्स व्हेन इट इज पुल। लॉन मूवर को जब हम पुल करते हैं तो वो मूव करने लग जाती है। सिमिलरली व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स वी कैन पुश अ चेयर। जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स को चेयर के ऊपर, जब हम उसे पुश करते हैं तो वो मूव करने लग जाती है। मूव अ बाइसिकल एंड लिफ्ट अ बकेट। हम बाइसिकल को कैसे मूव कर सकते हैं और बकेट को लिफ्ट कर सकते हैं। In all these cases, we move an object originally at the rest by applying a force. So इन सारी चीजों में हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया है उसके ऊपर फोर्स लगा के। However, it must be noted that it is not necessary that a force always make a stationary object move. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो फोर्स है हमेशा एक स्टेशनरी मीन्स एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर पाए। इफ अ पर्सन ट्राइज टू पुश अ वॉल और अ ट्री, अगर किसी पर्सन ने किसी वॉल या फिर ट्री को क्या किया, पुश किया, धक्का दिया, he would not be able to move any of them. दोनों में से किसी भी चीज को मूव नहीं कर सकता। It is so because the force applied by the person is not enough to move all of these. क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन के लिए जो है पॉसिबल नहीं है कि वो उस चीज को मूव कर सके। A force can stop a moving body. तो फोर्स क्या करता है, एक चलती हुई बॉडी को स्टॉप कर सकता है। When a force is applied to a moving body, it can be made to stop. जब फोर्स लगाया जाता है चलती हुई बॉडी की तरफ तो क्या होता है, वो रुक सकता है। एग्जाम्पल, a moving vehicle can be stopped by applying brakes. So चलते हुए व्हीकल को हम ब्रेक लगाएंगे तो वो रुक सकता है। A moving cricket ball is stopped by the fielder by applying an opposite force. So एक चलते हुए क्रिकेट बॉल को जो फील्डर है वो रोक सकता है एक अपोजिट फोर्स को अप्लाई करके विथ इट्स हैंड और फीट।
Thus we can say that force can stop a moving body. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि force क्या कर सकते हैं, एक moving body को stop कर सकते हैं. Now the third one is a force can make a moving body move faster. A force क्या कर सकता है, एक चलती हुई बॉडी को और तेज कर सकता है. When a force is applied on a moving body in the direction with the body is already moving. अगर किसी चलती हुई चीज पे हमने और फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, द बॉडी बिगिंस टू मूव फास्टर, वो बॉडी और तेज चलने लगेगी. एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ द साइकिल इंक्रीजेस व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड. जो स्पीड है साइकिल की वो बढ़ जाती है जब उस पर ज्यादा फोर्स हम लगाते हैं. ऑन द पेडल्स बाय द साइक्लिस्ट. द स्विंग मूव्स फास्टर व्हेन अ पर्सन गिव्स अ पुश टू इट. सो स्विंग क्या है, वो और तेज चलने लगती है जब कोई पर्सन उसे पुश करता है. A force can slow down a moving body. Force जो है एक moving body को slow कर सकता है. When a force is applied on a moving body in a distance, direct opposition, opposite. When a force is applied on a moving body in a direction opposite to the direction. So जब एक चलती हुई चीज की opposite से हम एक force लगाएंगे तो क्या होगा, the body slows down. वो body जो है slow हो जाएगी. The speed of the moving vehicle is slowed down by applying brakes. So चलती हुई गाड़ी में हमने एकदम से ब्रेक लगा दिया जो opposite side से आ रहा है तो क्या होगा, वो गाड़ी रुक जाएगी. The brake provide a force in the direction opposite. अब ब्रेक्स क्या करते हैं, opposite direction में force apply करते हैं to the direction of the motion. A swing can be slowed down if a person pulls the swing in the opposite direction. अगर एक पर्सन स्विंग को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है तो क्या होगा, वो स्विंग जो है स्लो हो जाएगी. A force can change the direction of the moving body. अब फोर्स क्या करता है, किसी भी चलती हुई चीज की डायरेक्शन को बदल सकता है. If a force is applied to a moving body in the direction other than its डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो अगर जो है फोर्स को अप्लाई किया जाए किसी भी एक चलती हुई चीज में उस डायरेक्शन में जो उससे ऑपोजिट हो तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस. जो मोशन होता है उस बॉडी का वो चेंज हो जाता है. दैट इज अ प्लेयर किक्स अ मूविंग फुटबॉल टू चेंज इट्स डायरेक्शन टू मोशन. सो प्लेयर क्या करता है, एक चलते हुए फुटबॉल को रोक देता है. एक प्लेयर क्या करता है, जैसे वो किक मारता है तो जो चलती हुई फुटबॉल है उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है. अ प्लेयर अप्लाइज फोर्स विद अ हॉकी स्टिक टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल. और एक पर्सन जो हॉकी स्टिक से खेल रहा है वो जब उस बॉल को हिट करता है तो वो बॉल का पोजीशन या फिर डायरेक्शन चेंज कर देता है. In tennis and badminton, the direction of motion of a ball or a shuttlecock is changed by hitting it. So इन सारे जो गेम्स है इनमें जो है जो भी ऑब्जेक्ट है चाहे वो बॉल हो या फिर शटलकॉक, इनके डायरेक्शन को चेंज किया जाता है उसे हिट करके. A force can change the shape of the body. फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है. When a force is applied on a body which is not free to move. So जब फोर्स को अप्लाई किया जाता है किसी ऐसी चीज पे जो easily मूव नहीं कर सकता है, it gets deformed. उसका शेप चेंज हो जाता है. That is the shape and the size of the shape changes. On pressing a piece of rubber foam. रबर से बना हुआ एक फोम है, अगर हमने उसे प्रेस किया तो क्या होगा, its shape changes. उसका शेप चेंज हो जाएगा. Similarly, when we fold the paper, leave the floor, squeeze a gum tube, etc., we can change the shape of the object. So इन सारे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर रहे हैं. या you can see the examples. Thus, from the above discussion, we can say that force is the cause that changes the state of rest or state of motion of a body or deforms it. So force क्या करता है, किसी भी चीज के स्टेट को
चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है और उसे डिफॉर्म भी कर सकता है. यूनिट ऑफ फोर्स. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन and denoted by the symbol N. So N is the standard unit of force. A 1 Newton force is required to lift a mass of 100 kg. So 1 Newton force हम तब लगाते हैं जब हमें 100 ग्राम की कोई चीज को उठाना होता है. So resultant force, which is net force, if two or more forces act in the same direction. अगर दो और उससे ज्यादा forces एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, they add up to give a resultant force. ये क्या करते हैं, एक resultant force देते हैं in the same direction, उसी direction में. Example, two men pull a cart in the same direction. अब दो men हैं, वो एक ही direction में cart को pull कर रहे हैं, तो क्या होगा, each one applies a force of 50 N. So हर किसी ने 50 N का force लगाया. So the net force of the cart would be 50 N plus 50 N, which is equal to 100 N. If two forces act in opposite direction, अब दो forces हैं वो opposite direction में जा रहे हैं, the net force is equal to the difference of the two forces. So यहाँ पे जो net force है वो क्या है, वो दोनों forces की difference के equal होगा in the direction of the bigger force, जहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ F1 and F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है F1 और F2, फोर्स 1 और फोर्स 2, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं ऑन अ बॉडी सच दैट F1 इज ग्रेटर देन F2, जिसमें जो है F1 जो है F2 से बड़ा है. देन द रिजल्टेंट फोर्स F is the direction of F1. So जो रिजल्ट आएगा वो F1 के अकॉर्डिंग आएगा and is equal to the difference between F1 and F2. और ये F1 और F2 की डिफरेंस के बराबर होगा. एग्जाम्पल इज if one man pulls the cart by a force of 50 N. अगर एक आदमी ने कार्ट को पुल किया 50 N से towards लेफ्ट की तरफ जा रहा है, and the other man pulls the cart by the force of 60 N towards the right. वो right की तरफ जा रहा है. Then the net force on the cart is 60 N minus 50 N, which is 10 N towards right. So यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया स्टूडेंट कि अगर एक इंसान राइट की तरफ जा रहा है 60 N, दूसरा लेफ्ट की तरफ आ रहा है 50 N, ज्यादा फोर्स किसका है, तो 60 N वाले का. तो कितना ज्यादा है, 10 N, उसने फोर्स ज्यादा लगाया है, राइट की तरफ जाएगा वो बॉक्स. If the two forces acting on the body are of equal magnitude, अगर दोनों फोर्सेस जो किसी बॉडी पे चल रहे हैं वो उनका दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ, बट आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0. सो जो फोर्स लगाया जा रहा है बॉडी पे वो 0 होगा. सो ये यू कैन सी देयर इज एन ऑब्जेक्ट, दोनों में 50 N का जो फोर्स लगाया गया, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 50 N minus 50 N, which is 0. Kinds of forces. We come across various kinds of forces in nature. So nature में कई तरीके के forces होते हैं. These can be classified as contact forces and non-contact forces. So इन्हें हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब क्या होते हैं ये दोनों, लेट्स रीड. कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज व्हिच आर अप्लाइड बाय एक्चुअली टचिंग द बॉडी. सो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें हमने बॉडी को टच कर रखा है, जिसमें हमने फोर्स लगा रहे हैं उसको हमने टच कर रखा है. दैट इज द ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट में है. एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. So these are the examples of this contact forces. Now what are non-contact forces? Are those that act from a distance. So non-contact force जो है एक डिस्टेंस से एक्ट करते हैं, इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है,
they act on the bodies without being touched visibly. So ये उन bodies पे work करता है जो एक दूसरे को touch ना करना. The first one is gravitational force, electrical force and magnetic force. So यहाँ पे ये 3 forces है that act as non-contact force. Next is let's learn more about contact of forces. As already stated, these forces act only when the objects are in physical contact with each other. So जैसा भी हमने पढ़ा था कि जब दो चीजें फिजिकली कंटैक्ट में एक दूसरे से, तो ऐसे ही फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. सो दीज आर द फर्स्ट वन द मस्कुलर फोर्स, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था. अब क्या होता है मस्कुलर फोर्स? इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मसल्स. हमारे मसल्स से जो फोर्स एक्सर्ट होता है, जो निकलता है, उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. जैसे कि अ रिक्शा पुलर यूजेस हिज लेग मसल्स टू मूव आवर रिक्शा. रिक्शा पुलर क्या करता है? अपने पैरों की मसल्स को यूज करता है रिक्शा को पुल करने के लिए. अ लेबर यूजेस हिज मसल्स ऑफ हिज आर्म्स एंड शोल्डर्स टू लिफ्ट द लोड. अब लेबर क्या करता है अपने मसल्स जो कि आर्म्स के हो गए या शोल्डर्स के हो गए, उनसे वो लोड को उठाता है. व्हेन वी वॉक और रन, जब हम क्या करते हैं? वॉक करते हैं या फिर रन करते हैं. वी यूज मस्कुलर फोर्स, हम मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं. वाइल पेडलिंग अ साइकिल, जब हम साइकिल को पैदल करते हैं, वी यूज मस्कुलर फोर्स and this force either changes the position of an object or deforms it. So ये force क्या करता है? किसी भी object की position को change करता है या उसका form बिगाड़ देता है, उसका form change कर देता है. Sometimes animals also use muscular force to move the object. कई बार क्या होता है, ये जो animals हैं ये भी muscular force को use करते हैं. जैसे कि bull uses muscular force to move a plow. An elephant uses muscular force to move logs in the forest. A horse uses muscular force to move a cart. A donkey uses muscular force to carry load. So यहाँ पे ये सारे animals अपने muscular force को use कर रहे हैं for carrying different objects. The next is the mechanical force. A mechanical force is applied to pull the train. Train को pull करने के लिए mechanical force use करते हैं. A machine does not exert a force by itself. जो मशीन होती है अपनी तरफ से फोर्स को exert नहीं करती है, but it needs energy from other sources. But उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए दूसरे सोर्सेस से to exert a force, फोर्स को exert करने के लिए. The force by wind to move a sailboat is a mechanical force. So वो फोर्स जो विंड से होता है किसी सेल बोट को मूव करने के लिए, उससे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. द फास्ट मूविंग एयर एक्सर्ट्स अ मैकेनिकल फोर्स टू ब्लो अवे द विंड. अब जो तेजी से चलने वाली जो एयर है वो क्या करती है? मैकेनिकल फोर्स को यूज करती है और विंड को ब्लो कर देती है. नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स. इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू मोशन. सो ये जो फोर्स है, जो मोशन है, उसे रेजिस्ट कर देता है. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. सो ये तभी होता है जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में हो एंड मूव इन रिस्पेक्ट टू ईच अदर. फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ साइकिल, जब हम साइकिल को पैडल करना बंद कर देते हैं, इट ग्रेजुअली slows down and ultimately stops after traveling some distance. So कुछ दूरी चलने के बाद वो अपने आप ही रुकने लगती है. Similarly, when we roll a ball on a plain ground, जब हम बॉल को एक प्लेन ग्राउंड पे रोल करते हैं, it stops after moving a certain distance. वो रुक जाता है थोड़ी सी दूरी पे मूव करने के बाद. Hence, force of friction slows down the motion of the moving body. सो अब क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो स्लो डाउन हो जाता है. ये स्लो कर देता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को इन कांटेक्ट विद द बॉडी. सो वो चीज जो दूसरे के कांटेक्ट में है तो उसे ये फ्रिक्शन का फोर्स स्लो डाउन कर देता है. व्हेन वी पुश अ हेवी बॉक्स, जब हम एक हेवी बॉक्स को पुश करते हैं
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो हमारे मोशन को ही अपोजिट वर्क करता है, एंड मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू पुश इट, तो हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस बॉक्स को पुश करना और बहुत मेहनत लगती है. सो ये यू कैन सी activity 1 which is given here. Here you can see the boy is pedaling and this boy is pushing something. Now the fourth one is elastic force. It is a force that is produced when, ये ऐसा force है इसे produce किया जाता है जब a body is stressed and then released. So body जो है stretch होती है और फिर release की जाती है. Example, a catapult causes a small stone to shoot out when it stretched or released. So catapult जो होता है उसमें एक छोटा सा stone लगाते हैं और जैसे हम उसे shoot करते हैं तो क्या करते हैं, उसे पहले stress करते हैं and then we release it. The body is compressed and then released. So इस केस में क्या होता है, बॉडी जो है पहले कंप्रेस होती है उसके बाद उसे रिलीज किया जाता है. इन द केस ऑफ स्प्रिंग, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो अभी हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. एज ऑलरेडी stated that these forces can act even when the objects are not in physical contact. So ये जो forces हैं तब भी वर्क करते हैं जब फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होती with each other and yet bring about changes. ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं होते लेकिन फिर भी चेंजेस लेके आते हैं. These are, the first is magnetic force. It is a force exerted by a magnet to pull magnetic materials towards it. So ये जो force है ये तब exert किया जाता है मैग्नेट से. कब होता है, टू exerted by a magnet, मैग्नेट exert करता है to pull magnetic material, magnetic materials को अपनी तरफ खींचने के लिए. A magnet attracts materials made of iron, cobalt and nickel. So जो ये मैग्नेट है वो इन रख से बने हुए मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचता है. And the next is electrical force. It is a force of attraction or repulsion between the two charged bodies. So ये क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या करता है, दो चार्ज बॉडीज को आपस में खींचता है, अट्रैक्ट करता है या फिर दूर करता है, रिपल करता है. The electrical force is used for removing smoke particles. So ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसे स्मोक पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है. फ्रॉम एफ्लुएंस कमिंग आउट ऑफ द चिमनी, जो एफ्लुएंस जो चिमनी में से आते हैं उसके लिए यूज होता है. दस रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ये फोर्स यूज किया जाता है. द थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स and it is a force with which the earth pulls the objects towards its center. So एक ऐसा फोर्स है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें सेंटर की तरफ खींचा जाता है. And who does this? Earth does this. Example, a ripe fruit falls down to the ground from the tree and water falls down from the hill. So यहाँ पे जब हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं तो ये अर्थ अप्लाई करता है. So कोई भी अगर कोई भी एक फ्रूट अगर वो पेड़ से गिरता है तो वो अर्थ की तरफ ही जाता है क्योंकि अर्थ से अट्रैक्ट कर अपनी तरफ. सिमिलरली जो वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल में से जो वाटर है वो हिल से गिरता है और वो अर्थ की तरफ ही डाउनवर्ड पोजीशन में आता है. नाउ द नेक्स्ट इज प्रेशर. व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट फोर्स इन डिटेल, when it acts over a large area, only a small effect is produced. So जब ये जो है काफी बड़े एरिया में होता है तो उसका एक छोटा ही इफेक्ट दिखाई देता है. On the other hand, when it acts over a small area, जब एक छोटे एरिया में किया जाता है its effects get multiplied और इसके जो इफेक्ट्स है वो ज्यादा होते हैं. So thus
force acting per unit area of the surface is called pressure. So ये force जो है कितने area के according per unit क्या है यहाँ पे ये work करता है उससे हम pressure कहते हैं. So pressure can be measured as force upon area. So pressure का ये formula है. Force is measured in Newton, which is N. फोर्स को हमेशा n में हम मेजर करते हैं. सो एंड द एरिया है इन मीटर स्क्वायर और एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं. सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. दिस यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन प्लस अपॉन मीटर स्क्वायर is given a new name which is Pascal, which is PA. In honor of French mathematician and physicist Blaise Pascal, who made important discoveries in the study of pressure. So Blaise Pascal ने बहुत सारे methods निकाले थे. He was a physicist and उन्होंने ही the study of pressure को discover किया था. So उनके name पे ही ये name दिया गया है Pascal. Hence the standard unit of pressure is Pascal. So जो standard unit है pressure का उसे Pascal कहते हैं. And 1 Pascal is equal to 1 Newton upon meter square. It is clear from the above formula that pressure depends on the two factors. So अगर हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले को देखेंगे तो हमें ये बात easily समझ में आएगी कि जो pressure है वो दो factors पे depend करता है. The force applied, if the force increases, the pressure also increases. अगर फोर्स जो है हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा. एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट, वो एरिया जहाँ पे फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं. इफ द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस. सो वो एरिया जहाँ पे फोर्स को डिक्रीज किया जा रहा है वहां पे प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा. एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में प्रेशर को अप्लाई करते हैं. लेट्स सी हाउ. हेवी ट्रक्स हैव 6 to 8 wheels in order to increase the area of contact on which their weight acts. So ये जो heavy trucks होते हैं इनमें आपने देखा होगा 6 से लेके 8 wheels तक होते हैं. क्यों होते हैं? इंक्रीज करता है क्योंकि ये जो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करता है जिसपे इनका वेट एक्ट करता है. एज अ रिजल्ट द प्रेशर डिक्रीजेस. सो इसलिए क्या होता है जब एरिया इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज द skis are made long and flat so as to increase the area of contact. So ये जो स्कीज हैं ये लॉन्ग और फ्लैट होते हैं. क्यों? ताकि इनका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ सके और जिसकी वजह से इट कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑन स्नो. जिससे जो है स्नो का जो प्रेशर है वो कम हो सके. दिस एनेबल्स द स्काइर्स टू स्लाइड ओवर द स्नो विदाउट सिंकिंग इनटू इट. और इसकी मदद से जो स्काइर्स है वो इजीली जो है स्नो के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं बिना उसके अंदर डूबे. The third example is saying the tool used for cutting like knife, blades, etc. have sharp edges. So ये जो tools हैं जो कटिंग के लिए यूज किए जाते हैं इनके जो एजेस हैं जो इनके कोने होते हैं वो काफी ज्यादा शार्प होते हैं. This is to reduce the area of contact. क्यों होता है ये? ताकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को कम किया जा सके. As the area of contact decreases, the pressure exerted by these tools increases. So जैसे ये area of contact जो कम होता है जो pressure है इन tools का वो increase हो जाता है. This large pressure enables one to cut the thing easily. और इसी ज़्यादा pressure की वजह से जो चीज़ें हैं वो easily cut हो जाती हैं. A camel can easily walk on the sand due to its broad feet. So अपने broad feet की वजह से जो camel है वो easily सैंड के ऊपर चल पाता है. एज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस, क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ जाता है. लेस प्रेशर इज एक्सर्टेड. तो इस केस में क्या होता है जो प्रेशर है वो काफी कम एक्सर्ट होता है. दस एनेबलिंग द कैमल टू मूव ऑन द सैंड.
और इसी की वजह से जो कैमल है वो इजिली मूव कर पाता है सैंड पे। The fifth is high-rise buildings are given wide foundations in order to increase the area of concrete. So जो ऊंची जो buildings हैं उनके आप देखोगे फाउंडेशन जो है काफी ज्यादा वाइड होते हैं। क्यों? ताकि इनका भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो जाए। एंड इन दिस इन टर्न एक्सर्ट्स लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से ग्राउंड पे कम प्रेशर रहे एंड दीज डू नॉट सिंक, और ये नीचे न जाए। स्कूल बैग्स है वाइड स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिक क्लोथ्स। सो ये जो स्कूल बैग्स होते हैं इनके आपने देखा होगा स्ट्रैप जो है वो वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं और ये थिक क्लोथ से बनते हैं। दिस इंक्रीजेस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जो क्या करता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज कर देता है एंड पुट्स लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर्स ऑफ द चिल्ड्रन, और ये बच्चों के जो कंधे हैं उस पर लेस प्रेशर देता है, मेकिंग इट इजी फॉर देम टू कैरी देम, जिससे वो इजीली से कैरी कर सकें। The wheels of army tanks are provided with a wide steel belt. आपने देखा होगा व्हील्स जो होते हैं आर्मी के, उसमें ये स्टील बेल्ट होती है जो काफी ज्यादा वाइड होती है ओवर द व्हील्स टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। क्यों होता है? ताकि ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा सके। दिस इन टर्न reduces the pressure, enabling the tank to move on the ground without sinking. So इसकी वजह से जो टैंक है इसलिए मूव कर पाता है ग्राउंड पे। वाइड वुडन स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो द रेलवे ट्रैक। आपने देखा है कि वाइड वुडन स्लीपर्स जो लगाए जाते हैं रेलवे ट्रैक के नीचे, सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेल्स ऑन द ग्राउंड बिकम लेस, जिसकी वजह से जो प्रेशर है इन रेलवे ट्रैक्स का ग्राउंड पे वो कम हो सके। becomes less due to an increase in area of contact, और क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज्यादा है इस वजह से यहाँ पे ये कम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, तो अभी तक तो हमने सॉलिड्स की बात की, लेट्स लर्न लिक्विड्स कैसे प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर एज वेल, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटीज। Measuring the pressure exerted by liquids. So, the pressure exerted by liquid can be measured by the instrument called manometer. So, manometer एक instrument है जो liquid की pressure को नाप सकता है. It is easy to make a manometer at home as well. और घर पे भी हम इसे easily बना सकते हैं. Application of a pressure exerted by liquids. So, अब जो लिक्विड जो प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे हैं उसे कैसे दिखा जा सकता है। द वॉल ऑफ डैम इज मेड थिक एट द बॉटम सो दैट इट कैन विथस्टैंड अ ग्रेट प्रेशर, एज वी नो दैट वाटर प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। सो आपने देखा होगा कि ये जो डैम है, डैम के जो वॉल्स होते हैं नीचे से आप देखो कितने ज्यादा वाइड हैं और ऊपर से ही कम वाइड होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी जितना ज्यादा गहरा होता जाएगा उतना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो इतने ज्यादा प्रेशर को झेलने के लिए जो वॉल्स हैं नीचे से वाइड बनाए जाते हैं। द वाटर सप्लाई टैंक्स आर प्लेस्ड एट हाई लेवल्स इन द बिल्डिंग सच एज ऑन टेरेस और ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज बिकॉज व्हेन टैंक्स आर प्लेस्ड एट हाई लेवल्स द प्रेशर ऑफ वाटर वुड बी लार्ज इनफ टू फोर्स द वाटर टू रीच द टैप्स ऑफ द हाउस। सो ये जो आपने देखा होगा घरों में ये जो पानी की जो टैंक्स होती हैं इन्हें या तो छत पे रखा जाता है, टेरेस पे रखा जाता है या फिर बिल्डिंग के टॉप पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसलिए क्योंकि ये जो टैंक्स हैं इतने अगर ऊंचाई पे रखे जाएंगे तो जो पानी का प्रेशर है वो इजीली जो है घरों तक पहुंच सकता है, हमारे टैप्स तक पहुंच सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज the pressure exerted by the air. So ये जो atmospheric pressure है ये pressure है जो air exert करता है. That is the atmosphere on all the objects. The earth is surrounded by a layer of air. So ये जो earth है इसमें आपने देखा होगा कि हर तरफ air है. You cannot see it but you can feel it.
and this is called the atmosphere, और इसे ही atmosphere कहते हैं. We live at the bottom of this layer. हम सबसे इस atmosphere के सबसे नीचे layer में रहते हैं. The air above us presses down on us. So ये जो air है हमारे ऊपर, ये हमें जो है presses down on us with a force that is equal to the force exerted by a mass of 1 kg on every square centimeter. So ये जो air का जो pressure है वो हमें force करता है, हमें press करता है, and it is equal to mass of 1 kg on every square centimeter. This is called the atmospheric pressure, और इसे ही atmospheric pressure कहते हैं. Measuring atmospheric pressure. अब कैसे से measure कर सकते हैं? Atmospheric pressure is measured by an instrument called barometer. So atmosphere का क्या pressure है उसे barometer से हम easily measure कर सकते हैं. Some application of atmospheric pressure in our daily life. So daily life में भी हम कुछ atmospheric pressure को महसूस कर सकते हैं. Let's see what are they. Though the pressure due to the atmosphere is so great, yet we do not get crushed by it. So air का pressure हम पे इतना ज़्यादा है फिर भी हम उससे crush नहीं हो पाते, वो हमें कुचल नहीं पाता. It is because the body of all the organisms is made up of cells. ऐसा क्यों है कि जितने भी organisms हैं वो उनकी body cells से बनती है. These cells have fluids that exert pressure from within. So ये जो cells हैं ये क्या करती है? Fluids से बने हुए हैं जो जिनके पास खुद का कुछ pressure होता है, and thus the two opposite pressures balance each other. इसलिए जो दो opposite pressure है एक दूसरे को balance कर देते हैं. And we do not get crushed, और इसलिए हम कुचले नहीं जाते. The astronauts who go into space are made to wear special suits. आपने देखा होगा कि जो astronauts हैं जो space में जाते हैं उन्हें एक special suit पहनाया जाता है. The atmospheric pressure in space is very low. यहाँ पे जो pressure है वो काफी ज़्यादा कम होता है. These suits maintain a balance in the pressure between the body and the atmospheric pressure in space. So ये suits क्या करते हैं? जो balance होता है दोनों pressures के बीच में उसे maintain करके रखते हैं. This ensures that the body cell of astronaut do not burst under internal pressure. So इसकी वजह से क्या होता है? जो body cells होते हैं astronaut के वो burst नहीं करते हैं internal pressure की वजह से. As we go higher, the atmospheric pressure decreases. जैसे जैसे हम और ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? atmospheric pressure जो है कम होने लगता है. It is much lesser than what our body is used to. So ये जो pressure ये इतना कम होता है जिससे हमारी body सहन नहीं कर सकती. Thus the pressure inside our body becomes higher in comparison to some blood vessels bursting, causing nose bleeding. So ये जो pressure है हमारी body में ये high हो जाता है और जिसकी वजह से जो blood vessels हैं वो burst हो जाते हैं हमारे और हमें nose bleeding start हो जाती है. It is quite common when we go to hilly areas or trekking. So जब हम hilly areas में जाते हैं या trekking में जाते हैं तो ये चीजें अक्सर होती हैं. As the liquids exert maximum pressure. क्योंकि ये जो liquid है इसमें काफी ज़्यादा pressure होता है. At the depth, the pressure exerted by ocean goes on increasing as we go deeper. So ये जो oceans हैं इसमें जो pressure है वो काफी ज़्यादा बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं. So deep sea divers wear special suits. So ये जो sea divers हैं ये भी एक special तरीके का suit पहनते हैं and carry oxygen cylinders with them और अपने साथ ही oxygen cylinders भी लेके जाते हैं. Next is atmospheric pressure helps us in sipping liquid. So ये जो atmospheric pressure है इसकी वजह से हम liquid को पी पाते हैं जैसे कि aerated drinks हो गए, milk हो गया from the bottle. One end of the straw tube is dipped in the drink and air is sucked through the other end. So जो एक कोना होता है इन straw का उसे हम drink में डालते हैं और जो दूसरा कोना है वहां से हम उसे suck करते हैं. During this activity, some air is removed from the straw. और इस एक्टिविटी के टाइम पे क्या होता है कुछ एयर जो है straw tube से remove की जाता है and the air pressure inside the straw tube is reduced. और जो एयर प्रेशर होता है straw tube के अंदर वो भी कम हो जाता है.
So the air pressure which is outside the straw tube act on the surface of the drink. So ये जो प्रेशर बाहर होता है एयर का वो उस ड्रिंक पे exert होता है and forces the drink into the straw tube. और ये क्या करता है, जो ड्रिंक रहता है उसे straw tube में ये फोर्स करता है. As a result, the drink rises to the mouth. और जिसकी वजह से ये ड्रिंक हमारे माउथ तक पहुंचता है. Next is the ink get filled in the fountain pen or ink filler due to atmospheric pressure. So ये जो fountain pen होता है या जो ink filler होते हैं उसमें भी atmospheric pressure की वजह से ही ink fill होती है. The pump inside the pen drives the air out from the barrel. So ये जो pump होता है वो जो air है उसे जो है पेन के अंदर ले जाता है और जिसकी वजह से ये लिक्विड फिल हो जाता है. The pressure from outside air pushes the ink into the pen. और जो outside pressure रहता है वो ink को पेन के अंदर push करता है. A medicine dropper and a syringe both works with the help of air pressure. So जो medicine dropper होता है या जो syringe होता है वो भी इसी पे work करता है. On putting the dropper into the liquid medicine and pressure, the medicine and pressing the rubber bulb, we see the air bubbles coming out through the liquid. So जैसे हम ड्रॉपर को लिक्विड के अंदर डालते हैं, मेडिसिन के अंदर डालते हैं और उसको उसके इस रबर बल्ब को प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि एयर बबल्स जो है निकलने लग जाते हैं लिक्विड में. Some air comes out from the dropper. The pressure of air within the dropper is now lesser. So कुछ एयर जो है ड्रॉपर से निकलता है और ये जो प्रेशर है एयर का वो जो है कम हो जाता है. Than the outside air pressure. ये जो बाहर का outside pressure है उससे कम हो जाता है. On the surface of the liquid, so the liquid rises in the dropper. और इसकी वजह से ये जो लिक्विड है वो ड्रॉपर में चला जाता है. In case of a syringe, the handle of the piston is pulled out. So जब हम syringe की बात करते हैं तो जो हैंडल होता है पिस्टन का वो बाहर की तरफ खींचता है. Due to this, there is empty space in the barrel. जिसकी वजह से एक खाली स्पेस होता है बैरल में. The pressure of air on the surface of liquid medicine makes it go into the empty space. और ये जो प्रेशर होता है एयर का on the surface of liquid, ये क्या करता है मेडिसिन को अंदर empty space में जाने देता है. Now children, let's recall what we have learned in this chapter. Force is a push, pull, stretch or a squeeze. In nature there are various kinds of forces. These can be classified as contact and non-contact forces. When two forces act in the same direction, they add up, give a resultant force in the same direction. The standard unit for measuring force is Newton and the pressure is defined as a force per unit area. Pressure on the surface depends on the area over which it acts. The standard unit of pressure is Pascal. The liquid exerts pressure downwards and southwards. And the pressure exerted by liquid increases with depth. The liquid exerts maximum pressure at the bottom. At the given depth, that is the same depth, the liquid exerts equal pressure in all the directions. The liquid pressure is measured by an instrument called manometer. And the pressure exerted by the atmosphere is called the atmospheric pressure. The atmospheric pressure is measured by an instrument called the barometer. Now let's answer these questions. In order to move a pram को move करना है, we have to apply force. Force apply करना पड़ता है. In this case, which type of force is applied? Push या फिर pull? So pram को अगर हमें move करना है तो हम उसको push करेंगे या pull करेंगे. You have to write down. Next, what kind of force is exerted by animals? Animals किस तरीके का force exert करते हैं? They pull the objects. Name two forces on which the pressure depends. So कौन से दो forces हैं जिस पे pressure depend करता है? Write it here. Give two examples wherein force act as a squeeze. So दो examples लेने हैं, लिखने हैं आपको जहाँ पे squeeze force apply हो रहा है. How do we measure atmospheric pressure? Atmospheric pressure को हम कैसे measure कर सकते हैं?
How is ink filled in the fountain pen? So fountain pen में कैसे हम इनको fill करते हैं? The pressure inside the pen is very low and the pressure outside is very high. So ये high pressure क्या है? Low pressure area में जाता है और जिसकी वजह से fountain pen में ये इनको push करता है. When Widenite and blades have sharp edges. So sharp edges क्या करते हैं? प्रेशर को जो है बढ़ाते हैं. एरिया बिकॉज एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है. So that's why they have sharp edges so that a lot of pressure is applied on touching the objects. Now which out of these is a non-contact force? इनमें से कौन सा non-contact force इसमें जो है आपने किस चीज को कॉन्टैक्ट नहीं किया? फ्रिक्शनल, magnetic, muscular or elastic. Give reasons for your answer. So from this, magnetic force is a non-contact force. We have to write down the example the reasons for the answer. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it, and we'll be meeting soon with a new video. Till then, stay lated.